Domestic में I was 70, 75. International में of course you might get around 2.53. आपको meal allowance मिलता है, plus आप कितने flying hours आपके होते हैं accordingly you're paid. Cabin crew job is more of your personality based. आपको good communication होना चाहिए. You should not be an introvert. First interview में actually मुझे थोड़ा idea हुआ कि उनका interview process कैसा है. हाय दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष जॉली और स्वागत करता हूं आप सबका करियर्स Q&A के दूसरे एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है धीरा सिंह। धीरा ने बहुत साल एयरलाइन इंडस्ट्री में काम किया है एज कैबिन एंड क्रू। तो आज हम जानने वाले हैं कैबिन एंड क्रू की जर्नी के बारे में, इंडस्ट्री के इनसाइट्स के बारे में और देखेंगे कितनी मजेदार जर्नी रही है धीरा की खुद की। Hi Dhira, welcome to the show. Hi Piyush, thank you for having me. Thanks for coming, Dhira. We really appreciate you coming us on the podcast and sharing your journey. My pleasure. Right, तो धीरा आज हम जानने वाले हैं आपकी लाइफ के बारे में, राइट? आपके सफ़र के बारे में, आपने जितना काम किया एज एयर होस्टेस, राइट? सो पहला सवाल वही पूछता हूँ आपसे कि आपकी जो जर्नी रही है एज एन एयर होस्टेस वो शुरू कैसी हुई? Okay, since I did my college and I had one of my best friend, she joined one of the airline in domestic. Okay. और जब मैं उसकी लाइफ देखती थी, I felt like why not? It was very interesting and why I should always try and go ahead. Yeah. बस ऐसे ही मैंने एक डोमेस्टिक एयरलाइन में इंटरव्यू दिया and I got it. फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर कर लिया? To be honest, it was second. I won't lie. First interview में actually मुझे थोड़ा idea हुआ कि उनका interview process कैसा है and how I have to answer. So basically, it was just an idea. And then the second interview, maybe I was really lucky. So thank God, I get into it. मुझे मेरे हो गया वहाँ पे and I joined the airlines. Okay. So it And was. धीरा कहीं से कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली थी क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को अबाउट दिस एयरलाइन इंडस्ट्री कैबिन एंड क्रू कैसे बनना है, राइट? Yes. सो कुछ किया था ऐसा कुछ कोर्स वगैरह आपने? I did not do any course, or I know there are a lot of courses which is running now and which is good enough, but I think ये कोई requirement है, necessity है, I will say no. Okay. So all you need to have a good personality, good communication skill and confidence, and that's all they're looking for. Okay. But in case you need to have an idea और आपको लगता है ज़रूरत है आपकी personality development के लिए, then it's a good thing. Okay. But to be very honest, all the airlines they have their own training. So before you are trained to fly and सारे procedures के लिए, अच्छा, and then you go ahead and operate a flight. So ये कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. अच्छा, पर आपका मन है, आपको एक आइडिया लेना है, आपका पर्सनालिटी में आपको लगता है मे बी यू आर नॉट गुड इन द कम्युनिकेशन या आपको थोड़ा सा मतलब हेल्प चाहिए, इन दैट रिगार्ड्स आई विल से यस. पर इफ तो मतलब थोड़ा सा अगर अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करना है, थोड़ा अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग वाइज अच्छी करनी है, राइट? तो आप जा सकते हो, वरना इफ यू आर गुड इन दैट तो कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है. इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू गो थ्रू ट्रेनिंग. You know what happens, Piyush, to be honest, when you're out of college, maybe you don't have an idea about makeup or grooming. You're still like a teenage, right? So अगर आपको लगता है उसमें help चाहिए, so it's good enough. Okay. But if you are confident and you think you have it and you have a good communication skill, आपकी grooming भी अच्छी है, so why not? So why not? Give it a try. You can give it a try. Yes. Great. Okay. So धीरा, हर एक जॉब का अपना एक हर एक इंसान का अपना एक फर्स्ट डे का अलग मजा होता है. एक अलग एक्साइटमेंट होती है, राइट? तो आपका पहला दिन जब आपने पहली फ्लाइट ली आफ्टर योर ट्रेनिंग, राइट? वो कैसी थी? कुछ goof ups किए थे? Training or you mean flying? जब मैंने first जब फर्स्ट फ्लाइट किया, फर्स्ट फ्लाइट. goof up? I think I did the worst flight. अच्छा. Many goof ups. Okay. But I had this thing was I was a very, especially when you're a teenager, like unknown with me, you don't have an experience. Right. But I was very bubbly and always happy and smiling. I think that worked. So passengers were very happy with me and I did very good service. But आप जब start करते हो, you don't have an idea about the aircraft और कुछ knowledge, technical. Maybe I was lacking there. अच्छा. तो वहाँ पे तो मैंने काफी goof ups किए. But as a beginner, goof ups are allowed. So it's not an issue. आप होता है चीजें mistakes होती हैं, but that's how you learn. किसी वेज वाले को नॉनवेज खाना तो नहीं दे दिया था? Many times. ये बहुत बार किया? Many times. अच्छा, ये बहुत बार हुआ है? Yes, Oh God, लोग तो बहुत चीखते होंगे. Yes, definitely. But you own it. You apologize, and then
I made sure that person was happy at the end of the flight. And आप service recovery करते हो और passengers happy. It's okay. It happens. Yes. तो ये तो हो गया पहला दिन, काफी गूप अप कर दिया, राइट? Yes. उसके बाद देन यू स्टार्ट लर्निंग इन योर जर्नी, राइट? आप करियर में लर्न करना शुरू करते हो. True. तो जो फर्स्ट ईयर था, थोड़ा सा उसकी कहानी बताओ कि पहले साल में क्या क्या हुआ, राइट? पहले साल में आप डोमेस्टिक ही फ्लाई कर रहे होगे, राइट? Yes. एज यू ज्वाइंड डोमेस्टिक एयरलाइन. सो पहला साल और पहले साल का एक्सपीरियंस, और उससे क्या कुछ सीखा आपने अबाउट द इंडस्ट्री, यू नो, हाउ यू विल ग्रो अहेड, थोड़ा उसका आइडिया दो. Sure. First year, of course, you were new. So हर चीज़ आपके लिए exciting होती है. या You can take it as like traveling. So Yeah. I went to places like Singapore, London. Wow. That was my first time. ओके. So I really enjoyed, watching like different things like cuisine, shopping, and हम लोग like taking pictures. It was memories I was making, and I was really happy. वो first year was really a beautiful moment. And as a teenager, when you start earning, that's a different feeling, right? वो जो पहला पैसा आता है ना, उसका हाँ अपना जी, मजा होता है हाँ ना, जी, उड़ाने का. sure. Yes. अच्छा. So वो बहुत अच्छा था. तो जब जैसे अब आप फ्लाई कर रहे थे, अच्छा आपकी एयरलाइन डोमेस्टिक थी बट यू फ्लाइंग इंटरनेशनल. Yes. आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे थे उसमें, right? मैंने पहले हाँ इंटरनेशनल भी कर रहे थे. हाँ, ओके sectors ओके. होते थे. डोमेस्टिक बस एयरलाइन बस डोमेस्टिक थी आपकी. Yes, ओके. they do fly. अच्छा, अब व्हेन यू फ्लाई टू लाइक जैसे आप सिंगापुर या लंदन गए, राइट? तो उसमें उस टाइम पे कंपनी कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी देती है टू स्पेंड जब बाहर घूमने फिरने के लिए, या फिर मतलब जैसे होटल तो आई एम श्योर ये कंपनी देती होगी, एंड वेरी गुड होटल्स, राइट? 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल काइंड ऑफ थिंग. Yes. अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे ही मिलते हैं टू स्पेंड वहाँ 1-2 दिन रुकने का, या फिर कैसे रहते हैं, अपनी सैलरी छोड़ाते हैं? Yeah, that's right. We do get meal allowance. Okay. So basically for the meal, if it's like a 2-day stay over there, हाँ. आपको meal allowance मिलता है. Plus आप कितने flying hours आपके होते हैं, accordingly you're paid. And then you have a basic salary. So everything is well taken care of by the airlines. And हर चीज़ paid होती है. Hotel is paid. You don't have to pay anything. It's all paid by the airline. 2-3 तरह के नहीं पैसे मिल, नहीं पैसे खूब मिल रहे हैं ना, सैलरी भी मिल रही है, Well taken मील care के of. पैसे मिल रहे हैं, Yes. है ना, और ऊपर से एक और जो आपने बताया कि अलाउंस अलग एक अलग मिल रहा है, राइट? Yes, that's right. पैसे तो बहुत मिलते थे यानी. All good. पहले साल में कोई बड़ा गूफ अप किया था? किसी पैसेंजर ने कुछ गलत, 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे गए, 2 द्वार बीच में बोल दी हो? यार बहुत किया था, बहुत हाँ? किया था. लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती थी और गोफअप्स भी बहुत थे, बट थैंकफुली माय सीनियर, माय कलीग्स, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे नो दैट यू आर अ न्यू पर्सन ऑन द एयरक्राफ्ट. सो दे डोंट पुट यू इन सिचुएशंस लाइक आपको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाए. दे कीप यू अ बिट बैक साइड एंड ना बेसिकली यू आर मोर ऑफ ऑब्जर्विंग. एंड धीरे धीरे व्हेन यू कॉन्फिडेंट, दे नो आपने बहुत महीने से फ्लाई किया है, देन यू गो अहेड एंड डू द मेन थिंग्स. एंड तो फर्स्ट ईयर में मेजर रिस्पांसिबिलिटीज क्या रहती हैं एज अ कैबिन क्रू? सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग और आपकी जो न्यू फ्लाइट्स रहती हैं, हाँ. so you're like an observer. So basically you're observing the cabin crew who are in the aircraft, वो क्या क्या ड्यूटीज कर रहे हैं. अच्छा. आपको 2-3 फ्लाइट ऐसी दी जाती हैं. ओके. So आप जब ऑब्जर्व करते हो हाउ इज इट गोइंग, 2-3 फ्लाइट जस्ट लाइक अ चेक फ्लाइट, यू डोंट ठीक हैव है. टू डू मोस्ट काम नहीं करना पड़ता मेजरली. एंड देन दे नो यू हैव डन 2-3 फ्लाइट्स, नाउ यू नो हाउ इट इज गोइंग. हाँ. तो फिर आपको मेन पोजीशंस दी जाती हैं एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. That's how it works. Okay. So अच्छा, आई नो आपने अपने करियर में पहले तो वैसे ही डोमेस्टिक एयरलाइन में काम करा, देन यू मूव टू द इंटरनेशनल एयरलाइन एज वेल, और वहाँ का बेस भी आउट ऑफ इंडिया था, राइट? सो थोड़ा सा व्हाट इज द कंपैरिजन वर्किंग फॉर एन इंडियन एयरलाइन और इंटरनेशनल एयरलाइन? व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट आर द पर्क्स एक्स्ट्रा, इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दैट? Okay. Both airlines, it's of course flying is beautiful, whether Yeah. you're flying domestic or आप international airline के लिए fly कर रहे हो. But definitely there are differences. So I will say the differences where, first of all, when I was in domestic airline, I was working mostly with the same nationality. अच्छा जी. और passenger profile is different. Most इंडियंस बाहर जा रहे हैं सिंगापुर घूमने, वो इंडिया वापस आ रहे हैं, राइट? सो इंडियन से exactly इंटरनेशनल में थोड़ा अलग हो जाता है. yes, the aircrafts were different और आपके allowances has a difference. अच्छा. So basically when I went to international airlines, वहाँ पे I was working with really different nationalities of cabin crew. So, Because they bring in people from all Yes. across the globe, right? So Yes. वहाँ पे आपके संग Americans भी होंगे, maybe Yes. Europeans too, all someone the from nationalities, yes, Asia, Thailand, Korea. मैंने बहुत सारे different cabin crew के साथ fly किया. And it was a plus point for me because हम जब domestic में काम करते हैं same nationalities के साथ, it's like same culture, right? But जब आप बाहर जाते हो and when you fly with different nationalities, different passengers,
you get a lot of knowledge about different cultures. That was really beautiful. Right. So for me that growing part came when I worked with international airline and मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली. Like interaction जब हम different passengers से करते हैं different nationalities के साथ, so I know like it was beautiful. और प्लस आपका जो एयरक्राफ्ट इज डिफरेंट, आपके सेक्टर्स इंटरनेशनल. टू बी ऑनेस्ट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन डोमेस्टिक वी डिडंट हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल सेक्टर्स. अच्छा. अभी इट्स डिफरेंट. हाँ, अब तो मेरे ख्याल से इंडिया बहुत फ्लाइट्स है. या दैट्स राइट. पर इंटरनेशनल में मैंने बहुत सिटीज बहुत कंट्रीज फ्लाई किया एंड दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई कांट टेल यू, आई मीन मॉनेटरी पार्ट इज डिफरेंट, जो बेनिफिट्स इज डिफरेंट, पर एज अ पर्सन व्हाट यू ग्रो व्हेन ट्रैवलिंग इज योर पैशन, इट डजंट मैटर. आप ग्रो अलग कर जाते हो और आपको एक मजा आता है घूमने का, है ना? हाँ जी, बिल्कुल. तो जिसको घूमने का शौक है उसको अगर फ्री में घूमना है तो कैबिन क्रू बन जाओ, मजा आने वाला लाइफ में, है ना? एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू. सो वो चीज हुई. प्लस बेनिफिट्स, यस, पैकेज इज वेरी डिफरेंट. अच्छा. So international, it's much higher package I'm pretty and sure. higher benefits. हाँ. So I think it's much more better. Right. There. Right. Yeah. So that was a difference. सही है. तो मतलब काफी सारे डिफरेंसेस हैं. पैसे भी ज्यादा मिल जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिल लेते हो, ज्यादा सिटीज फ्लाई कर लेते हो, क्योंकि इंडिया में तो खैर एक ही, मतलब आप सिर्फ सिंगापुर जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, है ना? एक या दो तरह का हो गया. बट दीज इंटरनेशनल एयरलाइंस ये ज्यादा फ्लाई आउट करते हैं. Yes, they have lot of sectors and especially international, like big airlines. आप किसी बिग एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हो तो डेफिनेटली उनका एक्सपेंशन डिफरेंट है, उनके बहुत ज़्यादा रूट्स होते हैं एंड दैट्स हाउ यू आर पेड मोर ओवर देयर. हाँ, एग्जैक्टली. सो दैट्स आई थिंक मच मोर बेटर एंड गुड डिसीजन एंड या दैट्स हाउ इट वाज फॉर मी. कभी कोई बहुत ही ऐसा फ्लायर मिला हो जिसने लगा अरे क्यों ही आ गया मेरी फ्लाइट पे, इसको उतारो यहाँ से अभी के अभी? यार ऑफ कोर्स आप इतने लोगों के साथ फ्लाइट कर रहे हो तो आई एम श्योर बहुत सिचुएशंस आती हैं, हमें डील करना पड़ता है. लाइक व्हाट इफ समबडी गेट्स इंटॉक्सिकेटेड. अब आप ही इज इंटॉक्सिकेटेड, ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, सो ऑफ कोर्स ही इज बिहेविंग लाइक वेरी ऑड, और ऐसी सिचुएशंस आती है, यू डोंट you like thinking what to do in situation. Exactly. You don't want to harm anyone, पर हमारे protocols होते हैं, we are well trained for it. So how we handle disruptive passengers, somebody smoking inside, so we need to follow. लोग करते हैं भी? Of course. अब हमारे इंडिया में तो वो सब कुछ वहाँ बाहर निकलवा लेते हैं, स्मोक अंदर ले जा कौन पाता है? यार इंटरनेशनल में चेकिंग कम करते हैं. Yeah, they do. Maybe I don't know how they get it, but they have been incidents. अच्छा. See, alcohol is served on. हाँ, वो तो मिल ही रहा है फ्री में. So वो तो एक हाँ. तो अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, so वहाँ पे चीजें हो जाती हैं. Plus, some people they get this cigarettes. I don't know how cigarettes are allowed. Maybe इधर allowed नहीं है, पर किसी और country में allowed है. तो वो चीजें ना difference हो जाती है. So they get it, they smoke maybe in the washroom, and then if we catch it, smoke detector is on. Of course, we have to take. वहाँ पे हमें लेना पड़ता है एंड चीज़ें होती हैं यार. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई विल से, मे बी फर्स्ट एड सिचुएशन. कभी आपके संग ऐसा हो बहुत ड्रंक आदमी मिल गया, परेशान कर दिया उसने आपको? यस. क्या हुआ था, उसकी कहानी बताओ थोड़ी सी. यार देयर वाज अ पैसेंजर, मेरी फ्लाइट पे था, बहुत लंबी फ्लाइट थी, है ना? अच्छा. और हम बहुत सारे कैबिन क्रू थे. सो ही वाज ड्रिंकिंग एंड एट वन पॉइंट मे बी ही गॉट ड्रंक and we try to calm them down. हर चीज़ करते हैं, हम protocols follow करते हैं. But then there was a point when he started abusing cabin crew, abusing fellow passengers, and then he started banging on the aircraft का जो wall है वहाँ पे. So we were like shocked what to do in this situation, but then we have to be professional. We are very trained, as I told you. So that's how हमने क्या किया was we informed the commander. एंड बेसिकली हमने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए. बट मन तो करता हो ना उठा के बाहर फेंक दो उसको प्लेन से, चलते प्लेन से बाहर फेंक दो इसको. यस. मैंने ना ऐसी याद आ रहा है मुझे, मैंने मूवी देखी थी, आप देखी होगी आपने, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट. तो उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो एक बार बहुत इंटॉक्सिकेटेड होता है अपनी एक फ्लाइट पे, तो उसको फिर बाद में कैप्टन ऐसे बांध के रख देता. तो ये होता है कभी आपके संग हुआ है? बिल्कुल होता है. ये होता है, ऐसे ही बांध देते हैं. ऑफ कोर्स. सो बेसिकली जब बहुत आउट ऑफ चीज़ें कंट्रोल हो जाती है, हमें रिस्ट्रेन करना पड़ता है पैसेंजर्स को. सो उनको ऑफ कोर्स लाइक अ हैंडकफ, बट वी हैव टू. एंड देन ऑफ कोर्स आप जब लैंड हो रहे हो, सो देयर इज पुलिस वेटिंग फॉर यू एंड दैट्स द प्रोसीजर. अब तुम जाओ, तुम्हारी हो गई एफआईआर, जाओ तुम जेल. हाँ यार, टू मेक श्योर द फेलो पैसेंजर्स आर सेफ. हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो वी हैव टू डू इट.
बट ये हुआ है, लोगों को बांध देते पकड़ के बिल्कुल। कि बैठ जाओ चुपचाप। यस, बिल्कुल होता है ये। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, कुछ बेनिफिट्स तो आपने बता दिए, है जी, ना? जी। और जहाँ तक लोगों को लगता है कि कैबिन क्रू का काम होता है सिर्फ खाना खिलाना, लाके ट्रे देना और ट्रे वापस ले जाना, दैट्स ट्रू। थोड़ा सा आगे का बताओ, इसके सिवा और क्या क्या करते हो? यार ये तो है, क्योंकि आप ये जो दिखता है आपको लगता है बस यही हाँ राइट। है ना? हाँ बट बैक ऑफ द थिंग्स हम लोग को इतना हाईली ट्रेन किया जाता है सेफ्टी, अच्छा। है ना? एयरक्राफ्ट में सेफ्टी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, कल को इफ देयर इज इमरजेंसी लैंडिंग, हाईजैकिंग फॉर गॉड सेक, बट डजंट हैपन टू एनीवन, पर ऐसी सिचुएशंस कभी भी आ सकती हैं, एंड इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड वेल, हाउ यू गोना ऑपरेट द फ्लाइट, हाउ गोना एक्ट, you will freeze, right? Yeah, We you cannot will, freeze. yes, you will absolutely. So we know passengers will freeze, but we cannot. We have to be in our senses. हमें अपने protocols follow करने हैं. Plus first aid is such a big thing, you know. Aircraft में अगर passengers को कुछ हो जाता है तो क्या करना है? So we are well trained for first aid as well. Okay. So we have to take care of a passenger having a heart attack or maybe any other issue, unconscious. तो इन सब चीज़ों में हमें follow करना होता है. आपने अभी नाम लिया था इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में, हाँ जी. कभी आपके करियर में हुई कोई इमरजेंसी करियर लैंडिंग? टचवुड नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. अच्छा. लकी ना, आई विल से. ग्रेट, थैंक गॉड. या इमरजेंसी लैंडिंग तो नहीं हुई, पर एयरक्राफ्ट में इश्यूज आ जाते हैं एंड देन वी हैव टू कम बैक फ्रॉम द बेस और उसको ठीक कराना होता है. बट आई रिमेंबर लाइक इन माय डोमेस्टिक एयरलाइन देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड. अच्छा. उसके एयरक्राफ्ट में हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग. ओके. सो बेसिकली इमरजेंसी लैंडिंग इज समथिंग लाइक व्हेन यू लैंड, यू आर नॉट लैंडिंग नॉर्मली, लैंडिंग रियली हार्श on a hard surface on the ground, तो वो normal नहीं होती. Right, exactly नहीं होती. So they were well prepared, वो jump seat पे बैठे थे, but it was so hard that lady, she really lost her spine. उसको spine issues हो गए उसके बाद. Oh God, क्योंकि जब वो land हुआ तो she must have jumped up तब करके, है ना? Yes, it was such a hard landing. Okay. And she really had to suffer some medical things. But that's a part of the job. Even हम accidents में, road accidents हो जाते हैं. हाँ, right. And things वो तो होता है. But I still think aircraft is the safest mode of transportation. So yeah, so not to panic. Things happen in life. Things happen in life, but you right. should really be okay with it and be prepared for it mentally. So that's fine. But crew is there for that. So basically crew उसका ध्यान रख लेगा, कुछ इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, so they are taking care of it, है ना? That's true. तो लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्रू की सुन ले उस टाइम पे जब वो कह रहे हैं, don't don't panic उस टाइम. That's what I'll say. Listen to them. Don't think they are just serving you meals. हाँ. They know उनको पता है. Please, yes. उनको पता है ना, सिर्फ जो कैप्टन प्लेन उड़ा रहा है उसको नहीं पता, इनको भी कुछ पता है. Exactly. They also have knowledge about the airplane. That's true. Right. So अच्छा धीरा, एक करियर ग्राफ कैसा रहता है? तो जैसे जब मैं स्टार्ट करता हूँ एज अ फ्रेशर, Yes. तब क्या, जो बड़ी एयरलाइंस होती हैं तो क्या उनमें मैं मतलब ऐसा भी होता है कि सीधा बिजनेस क्लास में सर्व करना शुरू कर देता हूँ, या फिर ये भी एक करियर ग्राफ है अपना कि पहले इकोनॉमी से शुरू कर रहे हो, फिर प्रीमियम इकोनॉमी जा रहे हो, फिर बिजनेस जा रहे हो? Yes. कैसा रहता है? That depends on airline to airline. अच्छा जी. है ना, उनका क्या प्रोटोकॉल है. But when I was working in the international airline, you start from the economy. Okay. So when you're starting there, you work there for a while, and then you're promoted to business class. You work there as a flight attendant. तो ये मतलब मेरे लेवल्स है, promotions which I'm getting. हाँ जी, there are promotions. Then you become the lead of the aircraft, and आप सबको lead कर रहे हो अपने team को, taking care. So basically that's how you get promoted. Depends on your performance, and depends how long you're working in the airline. लीड वो होता है जो दरवाजा बंद करता है लास्ट में? दरवाजे सब बंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं, सिर्फ लीड सारे दरवाजे बंद नहीं कर अच्छा नहीं, जिससे हम सब जब स्टार्टिंग में चढ़ते हैं तो एक बंदा बंद करता है ना, जो वो लीड होता है. हाँ, दैट्स द मेन डोर, जो फ्रंट का डोर होता है. यस, दैट्स राइट. वो लीड ही कर रहा होता है. उसका एक केयर तो है दरवाजा ठीक से बंद करने का. और भी है, बट आप वही देखते हो. हाँ, एक मेन केयर मिल गया हमें. दैट्स ट्रू. अच्छा, कोई ऐसी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए हो टू बी अ कैबिन क्रू? जैसे एक तो हमें पता लगा, जब आपने स्टार्टिंग बताया कोर्स करने की जरूरत तो नहीं है, बट कोई क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन तो कर ही लो किसी ना किसी फील्ड में, उसके बाद जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ? I feel like cabin crew job is more of your personality based, communication based. So इसमें आपकी personality की ज़्यादा ज़रूरत है. For education wise, I think just the high school is the requirement. Yes, but I feel why not if you're done graduation later on, आपको जब cabin crew job से shift होके if you want to join the office in other departments, it's a plus point.
Okay. So definitely that's a plus point when you later on want to shift another job requirement जो airlines के अंदर होती है. हाँ, right. Requirement is just high school plus a very good personality, good communication, grooming, and you really have to have a good set of mind कि आपको यही करना है. You're confirmed and then that's all it is तो मतलब required. एक बार करियर स्टार्ट कर लिया कैबिन क्रू में, उसके बाद कुछ साल काम कर लिया, फिर ग्राउंड स्टाफ या कुछ और जॉब में मूव कर सकते हैं विद इन द Yes, एयरलाइन, है yes, ना? definitely. वो भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर कुछ एक स्पेसिफिकेशन ले लोगे पहले लाइफ में. That's तो true. पहले यहाँ पे अपना ट्रैवलिंग का सारा शौक पूरा कर लिया, हाँ जी. मजे मार लिए Yes, yes. और उसके बाद फिर इस कुछ और फील्ड में घुस जाओ, है ना, That's विद इन द एयरलाइन. लाइक और जैसे हर उस डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ हाँ. ऑफिसेज होते हैं. हाँ, Airline cabin crew is the face of the cabin, yeah, face of the airline, right. But back end में there are a lot of departments working and different people are working, right? You're right. So आप वो join कर सकते हो since you have such an aviation में experience. So वो भी departments होते हैं, लोग को पता नहीं है. So आपको ऐसा लगता है if you want to later on join, good. That's a plus point if you have aviation experience as cabin crew. ठीक है, एक तो जो मुझे समझ आया, ठीक है, ये जर्नी हो गई, ठीक है, यू स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमी देन बिजनेस कर लेते हो और उस हिसाब से Yes. अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ होती होगी, हाँ है ना? जी, हाँ जी. एक बेनिफिट्स हो गया कि मॉनेटरी पैसे तो अच्छे मिलते हैं. और क्या बेनिफिट्स होते हैं, कुछ और बेनिफिट्स जो लोगों को मिलते हो एज अ कैबिन क्रू? So when I was working in this international airline, of course you get meal allowance, hotel, everything. When you join, you get your accommodation, which is very nice. Okay. I mean, I love my accommodation. एंड योर बेस इज आउटसाइड इंडिया? Yes, you're based out of in India, जहाँ पे जहाँ की भी एयरलाइन है तो airline वहाँ का है. बेस होगा उसका. like Emirates is based in Dubai, cabin तो आप दुबई रहोगे? हाँ, Qatar Airways, you're based in Doha. तो आप दुबई रहोगे? Exactly. So Okay. आपको एक ये opportunity मिलती है if you want to go abroad, or plus you get a good accommodation, which is very nice. And then you also have departments, like you have welfare department taking care of you. आपको कभी कुछ होता है, you just need to call them, they take care of it. अच्छा जी. You have medical insurance given by the company. हाँ. And flying में जैसे आपको मैंने बताया पहले भी, hotel, meal allowance, all these all given by company. तो अच्छा, मैं जैसे मान लो काम करता हूँ, मेरा एक दोस्त, मुझे पता नहीं मुझे वर्ड याद नहीं, उसने मुझे बोला था आईडी टिकट दे दूंगा, तेरा नाम लिखवा दूंगा, तो उसमें पैसे शायद कम देने पड़ते हैं. Yes, है वो क्या होता है, मतलब कैबिन क्रू की फैमिली क्या फ्री में ट्रैवल करती है? यार सी ऑफ कोर्स आप एविएशन का एक पार्ट हो तो आपको एक एज अ बेनिफिट देते हैं, टिकट्स देते हैं. ओके. So it's not only आपके लिए, your even family gets it. ओके. But these depends on different airlines. But अच्छा जी. definitely you get these tickets और आपके लिए easy रहता है फ्लाई करना. You get हाँ. lot of discounts and benefits. Then also you have like free ticket once in a year which is confirmed. ओके. And you can also fly business class. Business class में भी travel कर सकते हो as a ये cabin असली crew. मजे ये है ना, हाँ बिजनेस जी. क्लास में ट्रैवल करने के. Yes, definitely. क्योंकि इकोनॉमी तो आपके पैर दर्द कर जाते हैं थोड़ी देर के बाद. Yeah, like seatings different होती हैं definitely. हाँ. पर हाँ, ये perks रहते हैं as a being a flight attendant in some good reputed airline, you get more benefits. कुछ लोग किस तरह के रहते हैं, जैसे इकोनॉमी वर्सेस बिजनेस क्लास अगर बात करूं, Yes. तो कौन ज्यादा परेशान करता है? Yeah, इकोनॉमी में बड़ी होती थी जैसे, तो Yeah. जो इकोनॉमी में काम करो उसको बहुत सारे लोग खाना खिलाना है ना. हाँ जी, बिजनेस हाँ क्लास तो जी. छोटी सी है, 15-20 सीटें होती है मेरे ख्याल से ना एक प्लेन हाँ में. जी, हाँ तो जी. उसके पास छोटा एरिया है टू Yes. केटर, है ना. Yes. तो अब इकोनॉमी में खाना दे दिया तो लोग ये कहते हैं पसंद नहीं आया, वापस ले जाओ, दूसरा दो. Yeah. या कितना परेशान करते हैं इकोनॉमी वाले वर्सेस बिजनेस क्लास वाले? यार हमारे लिए तो सारे पैसेंजर्स दे आर द सेम, वी ट्रीट देम सेम. ऐसा कुछ नहीं है लाइक बिजनेस क्लास हम डिफरेंट ट्रीट करते हैं और इकोनॉमी से हम डिफरेंट. बट ऑफ कोर्स इकोनॉमी इज़ अ बिगर पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट. ज़्यादा लोग हैं, सो देयर बी मोर चैलेंजेस. और आगे बिजनेस क्लास इज लेस ऑफ पीपल, लाइक 20-24 डिपेंड्स ऑन द एयरक्राफ्ट. हाँ. तो वो हमें लेस चैलेंजिंग है. हाँ. वो होता है. बट या फॉर अस इट्स ऑल द सेम. हम चाहते हैं कि ऑल पैसेंजर्स दे शुड बी हैप्पी. एंड ऑफ द डे सब लाइक फ्लाइट में कस्टमर ही भगवान है. जी बिल्कुल. चाहे तो जो मर्जी कर ले, मैं हंसती रहूंगी. ठीक है. True, true. अच्छा, आपके करियर्स में आई एम श्योर इतना लंबा करियर हो गया, इतने जी, सालों में काम जी, करते हुए, हाँ जी. कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे फॉर श्योर, राइट? तो कभी मन करा कि यार क्या कर रही हूँ मैं, छोड़ दूँ इसको, बस बहुत हो गया मेरा?
या डेफिनेटली पीयूष, ऐसा हुआ है बिकॉज आप जब बाहर काम करते हो, यू अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, सो कुछ टाइम मे बी यू आर फीलिंग लोनली, आपको लाइक व्हेन यू आर सिक और समथिंग, इट्स नॉट द कंपनीज फॉल्ट, मैं कहूँगी दे डू टेक केयर ऑफ यू, बट एज अ पर्सन मे बी यू मिस योर फैमिली, होम सिक फील करते हो हो, जाता हाँ, है, हो जाता है। बट देन बैक ऑफ द माइंड आई फील लाइक चैलेंजेस किस जॉब में नहीं है, राइट? राइट, एवरी जॉब हैज इट ओन चैलेंजेस, हाँ, कोई परफेक्ट जॉब नहीं होता है, सो वो चीज़ें रहती हैं, बट इफ़ यू मैनेज दैट वेल, आप इफ़ यूर अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट इनफ एंड हु हैज़ द करेज टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक इट्स फाइन। हर चीज़ में चैलेंजेस है, यू नीड टू फेस द चैलेंजेस एंड कीप गोइंग विद इट। अगर if you really like traveling and the benefits you're getting, then you feel like it's well balanced, right? And as a cabin crew we get enough leaves as well to come back home, meet family. ओके। मैं और तो वो क्या सब करती पेड अप थी, होता है बाय एयरलाइन या उसमें कैसे खुद पैसे खर्च कर जाना पड़ता आईडी है? टिकट्स, हम लाइक टिकट्स रहते हैं जो अच्छा। हमें दिया जाता है एयरलाइन से, तो हम उस पे ट्रैवल करते थे। ओके, प्लस व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू गेट माय फैमिली आल्सो टू ट्रैवल विद मी, जब भी मुझे पता है अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ उस जगह, to get my mom and dad, and we used to have like a trip together, so that's how you manage it. लेकिन मन करता है कभी कभी पक जाते हैं, स्पेशली वो ऑड टाइमिंग से, कभी फ्लाइट 3 बजे की है सुबह, कभी फ्लाइट शाम की 5 बजे की है। अगर आप इसको एक नॉर्मल ऑफिस जॉब से कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा, हाँ, but this is not a normal office job, Normal office this is job. something different, you know what you're facing, you're going for it, आपको Yeah. पहले ही पता है, पहले ही पता है है ना, जॉब की हाँ, रिक्वायरमेंट्स, so go ahead, do it. If you don't feel fine, you have the option, you can go back, not an issue, it's not for everyone, I will say. जैसे नॉर्मल जॉब्स में होता है कि वी हैव 5 डेज वर्किंग, तो क्या इस फील्ड में ऐसा कुछ होता है कि हफ्ते में जैसे 6 फ्लाइट लोगे या हफ्ते में 5 फ्लाइट ही करोगे, उसके बाद आप घर पे 2 दिन रेस्ट करोगे, देन यू विल कम बैक एंड डू 5 मोर फ्लाइट्स एंड देन टेक रेस्ट, ऐसा कुछ? यस यस पीयूष, बेसिकली क्या होता है कि हमें एक स्केड्यूल दिया जाता है ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, इट्स कॉल्ड रोस्टर, ओके, तो उसमें आपको पता होता है व्हाट फ्लाइट्स आर यू ऑपरेटिंग, कब आपके ऑफ हैं, तो वेल प्लान्ड होता है ऑलरेडी बाय द कंपनी, अच्छा, आप उसको फॉलो करते हो, तो आई कांट टेल यू लाइक हम 4 दिन फ्लाई करते हैं, 5 दिन फ्लाई करते हैं, वो डिपेंड ऑन द रोस्टर। तो ऐसा हो सकता है कि एक वीक में 6 दिन हो, अगले वीक में 3 दिन फ्लाई करो, यस, है ना, ये भी हो सकता है, yes, सो of दैट यू कुड course. गेट सम गुड रेस्ट और वो हाँ जी बिल्कुल, हो जाए ना। यस, ऐसा भी तो होता होगा कि यहाँ से उड़े तो यहाँ रात थी, वहाँ पहुंचे तो मतलब वहाँ भी रात निकली, अब समझ नहीं आ रहा करना क्या है, सोना है, जागने की नींद तो आ नहीं रही, जेट लैग, राइट, जेट लैग, टाइम डिफरेंस, जोन डिफरेंस, बेसिकली मैं लैंड करती थी रात को, निकलती थी हाँ, और लैंड करती थी स्टिल रात है, चल रहा है so I used to really think like I want to see sunshine, हाँ, क्योंकि मुझे तो हो गए 15 घंटे यार अभी फ्लाइट में, तो ये निकली, लेकिन डेफिनेटली, बट देन आई ऑल्सो रियलाइज जब आप लॉन्ग टर्म कभी काम करते हो ना, आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाती है, हाँ, तो वो ये बॉडी है, एडजस्टमेंट ये अपने है, आप नेचुरली हो जाता है, एंड देन यू डोंट रिएक्ट इन दैट वे जो आप स्टार्टिंग में करते हो, धीरे धीरे लाइक टर्बुलेंस Turbulence, वेरी हाँ, बिग फैक्टर इन द एयरक्राफ्ट, राइट, राइट, सो मैंने जब स्टार्ट किया था लाइक मुझे टर्बुलेंस से बहुत डर लगता था, किसी को भी लगेगा, एंड रियली आई हैड अ रियली बैड टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, बट लेटर ऑन कुछ साल बाद लाइक कुछ भी टर्बुलेंस और आई डोंट केयर, मैं You didn't नॉर्मल care. वॉक करती थी एयरक्राफ्ट में, आई डिडंट रियली केयर बिकॉज वो बॉडी एडजस्ट करती है, एडजस्ट कर देती है, सो राइट, दैट्स लाइक चेंजेस व्हिच विल हैपन, यस जो होते ही हैं लोगों के साथ। हाँ जी, अब आपने बताया कि पैसे ठीक ठाक मिलते हैं, तो एक बार जान लेते हैं किस टाइम पे कितने मिलते हैं तो Okay. अब 2 कंपैरिजन लूंगा आपसे, ठीक है? हाँ जी, सो सैलरीज इन एज अ फ्रेशर इन डोमेस्टिक, और ये क्वेश्चन भी आ जाएगा इसके साथ कि क्या एज अ फ्रेशर मुझे इंटरनेशनल एयरलाइन हायर करती है? ऑफ कोर्स करती है, अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डोमेस्टिक एयरलाइन में देन ओनली हायर्ड, नहीं, and even if you go on their website and see the job requirement, it doesn't say we need experienced cabin crew, ओके, so please don't think that you need to be experienced, है ना, फ्रेशर भी हायर हुए हैं, फ्रेशर भी lot of हायर my होते हैं friends, yes, इंटरनेशनल, that's true. ओके, इट्स सीधा इंटरनेशनल में, सीधा इंटरनेशनल, Wow. yes, of ये भी course, मजेदार है फिर तो। yes, but if you're an experienced maybe it's a bonus point, maybe हाँ। वो ज़्यादा प्रेफर करते हो, but it's not a requirement, I will say, yes. तो अब सैलरी कितनी रहती है फ्रेशर डोमेस्टिक में? एक रेंज बता दो, सब जानना चाहते हैं हाँ, सैलरी पैकेज तो पता लगे। ओके, सी इट डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल एयरलाइन टू एयरलाइन, अच्छा, बट जब मैं डोमेस्टिक में थी, दैट इज लॉन्ग टाइम बैक नाउ, सो आई वाज लाइक स्टार्टिंग में इट वाज दैट टाइम इट वाज रियली लेस, अभी चेंज हो चुका है डोमेस्टिक, माय फ्रेंड्स आर गेटिंग पेड मोर, सो मे बी से 40 70
Something सो ये like रेंज है, that. इफ वो आप अब डिपेंड Domestic करेगा आपकी में. पर्सनालिटी पे, 40 से 70 अब किस रेंज में आप Yes. क्रैकर, और आपकी एयरलाइन पे flight भी, hours कितनी है और airline एयरलाइन पे and भी है ना. आपका क्या वहाँ पे designation है, you're like the senior lead or you're just आई थिंक ये जो हाई एंड एयरलाइंस है लाइक विस्तार एंड ऑल, इनकी सैलरी ज्यादा रहती होगी एज कम्पेयर टू द अदर एयरलाइंस. Yeah, it's almost the same अच्छा, in domestic. ओके. But international, it's I will say we started around 2 2 lakhs पर मंथ. and then when और I अगर went- जॉब लग गई एमिरेट्स या कतर जैसी एयरलाइन में जहाँ पे टैक्स नहीं लगना, तो 2 लाख रुपए पूरे मिल रहे हैं महीने के. yes, वो starting में and later on we were getting paid like 3.5, 3 something like this when you're senior enough. मतलब 5 साल के एक्सपीरियंस फिर कितने का, ये 5 साल का अगर एक्सपीरियंस हो तो यू स्टार्ट विद 1.5-2 लाख से इंटरनेशनल में. 5 साल एक्सपीरियंस हो गया तो 3-3.5 लाख. यार when you even if you experience हाँ. salary package आपकी same है as a अच्छा, fresher. It doesn't अगर मैं matter. इंटरनेशनल पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ, चाहे मुझे डोमेस्टिक में 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो फ्रेशर ही काउंट करेंगे मुझे. Count fresher करेंगे, not I will not say they will count you as fresher. They know you're seen like you have an experience. हाँ. But salary package is same. उनके फिक्स हैं. But आपका growth path different रहेगा. Maybe you are promoted before them since your experience. That happens. You're on a fast track. Yeah, okay, So okay. a fresher starting may take more time to come in business class or later on, and maybe your experience you get more promoted. Promoted. Yeah, जल्दी before हो जाए. them. Before But them, that's okay. not with all the airlines. I will say the fast track thing. It depends. Depends. Again, yes. So डोमेस्टिक में स्टार्ट कर लिए 40 to 70 मिल गए. जी. 5 साल के बाद कितने मिल जाते हैं Domestic में डोमेस्टिक में? I will say 70, 75. 70 to 70. Yes. 70 तो See, मतलब when I joined, it was different. I'm telling you. So I हाँ. have an approximate for them. हाँ. But international में, of course, you might get around 2.5, 3. 5 साल बाद 2.5 to 3 लाख मिल जाएंगे Yes, इंटरनेशनल yes, में. I will say वाओ, that, yes. अमेजिंग. और अगर 10 साल कर लिए तो ये मत बोलना 10 लाख रुपए मिलेंगे महीने यार के. 3.5. अच्छा, 3.5. हाँ जी, हाँ तो वो फिर वो ग्रोथ ऐसे ही चलता है, थोड़ा स्टैग्नेंट रहता है ना. हाँ, मतलब अब now 2 पे you're ज्वाइन really- करते हो इंटरनेशनल में, अगर 2 पे ज्वाइन करा तो 3-3.5 तक पहुंच पाते हो 5-10 साल में. हाँ, थोड़ा आप स्टैग्नेंट, थोड़ा like इजी now चलता है. हाँ जी, आप लेकिन like 10 सैलरी के साल साथ फिर अलग पर्क्स भी थे जो आपने बताया. वो अलाउंस अलग मिल रहा नहीं, है. that's all included. अच्छा, दैट्स ऑल इंक्लूडेड. हाँ ओके, जी, ओके, and ठीक it's है. all included, but you don't have to pay for your medical expenses. हाँ. All paid. You don't have to pay for accommodation. So the salary is हाँ, all ये yours. सही ना. सबसे ज्यादा अगर बाहर में रहता हूँ इंडिया से, तो मेरा खर्चा अकोमोडेशन में भी हाँ हो जी, जाता हाँ जी. है ना. तो इसमें वो जीरो हो जाता है So क्योंकि you- अकोमोडेशन yes. कंपनी दे रही है. Yes, so you don't have to pay for anything, and बाकी the salary is all yours to enjoy, shop, travel. मजे मारो. हाँ जी. अच्छा, अगर मैं मान लो सोच रहा हूँ टू परस्यू अ करियर इन कैबिन क्रू, तो आपको क्या लगता है, मतलब किस बंदे के लिए जॉब ठीक है? मतलब उसका मतलब नेचर या उसका एक थोड़ा सा जो थिंकिंग है टुवर्ड्स दी जॉब्स कैसी होनी चाहिए? मतलब किस तरह के आदमी के लिए अगर पूछूँ तो ये कैबिन क्रू जॉब सही है? I think first of all आपको good communication होना चाहिए. But the most important, I feel like you should not be an introvert. You should be an extrovert, like who right. likes to meet people, who हाँ. likes to really talk to people. अगर आप में ये नहीं है, so later on you might feel like you don't want to talk to passengers, और आप में वो नहीं आएगा. So first ये होना चाहिए, you really like traveling, you really like to interact with people. And later on, grooming, all this thing, it can come with courses, teachings. अगर आप में नहीं भी है, but you need to have that personality. ये बहुत important ये है. पर्सनालिटी निकाल के आना काफी, मतलब एक्सट्रोवर्ट होना तो मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना. Exactly. वरना लोगों को कैसे ग्रीट करोगे सुबह शाम हाँ सबको जी, गुड if you don't मॉर्निंग. like people, how you will deal with people? It's all about you're dealing with human beings. वो चीज़ आप में बहुत important है होना. वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. Yes. एक तो बताया आपने, पैसेंजर आपको मिल गया था जिसने बहुत ड्रिंक करा हुआ था और उसको संभालना बहुत मुश्किल हुआ था. Yes. कभी क्रू के संग भी ऐसा हुआ है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हैं विद इन द टीम, एक दूसरे ड्यूरिंग द फ्लाइट, और अब लगाओ ये फ्लाइट कब लैंड करेगी तो बस मैं कंप्लेंट कर दूं इसकी, या कुछ बस अभी नहीं मिलना इससे मुझे. ये चीज़ें होती हैं. विद इन द टीम लोगों में जैसे होता है वैसा कुछ. As soon like team, maybe everyone has different personality. Luckily, when आप professional होते हो, where you're well trained, you know how to act. You're not in your holidays or something. आप एयरक्राफ्ट के अंदर काम करने आए हो. हाँ, right. Mostly चीज़ें नहीं होती हैं. अच्छा. So maybe arguments हो जाए something. It's not like a big thing. Things get solved, and when you have a same goal, आपको पता है you here to even look for after passengers. ये सब चीज़ें छोटी होती हैं. So nothing major, I will say. ऐसा कुछ Yes. होता नहीं है. ऐसा Yes. कुछ होता नहीं है. Yes. अब इंटरनेशनल कंपनी में
काम जब कर रहे होते हैं राइट, जी तो एक कल्चर बिल्कुल अलग होता होगा आई होप जी एज कम्पेयर टू इंडिया। हाँ जी। वो कल्चर कैसे रहता है, मतलब वहाँ के लोग कैसा, जैसे अब आप जब जॉब जा रहे हो या वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो कंपनीज कैसा ट्रीट करती हैं? क्या वो अपने नेशनल्स जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनको एक अलग तरह का ट्रीटमेंट देती है और आपको अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, या दे एक्चुअली ट्रीट यू ऑल वेल, और यू मीन पैसेंजर्स और नो नॉट द cabin पैसेंजर्स, crew? आपकी जो कैबिन क्रू को? यार हम जब कंपनीज के लिए काम करते हैं, दीज आर बिग एयरलाइंस, यू नो, एंड दे डोंट थिंक लाइक द स्मॉल, लाइक दे विल प्रेफर देयर ओन नेशनैलिटी और डिफरेंट नेशनैलिटी। वी ऑल आर ट्रीटेड इक्वली, हमारे लिए हर चीज़ इक्वल होती है। सो आई नेवर फेल्ट लाइक एनी बायसनेस टुवर्ड्स एनी ऑफ मी और एनी अदर नेशनैलिटी। ये चीज़ कभी कभी फील नहीं नहीं किया? है मेरे साथ, नहीं बिल्कुल नहीं, स्पेशली फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। I never felt like that. So Right. that was a plus point working in big airlines, that they are professionals. And plus ये airline, I know एक air like Doha, they have their own culture, उनका हो सकता है, but हमारे मैनेजमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के ही लोग हैं। सो ऐसा कभी मुझे बायस्ड फील कभी नहीं हुआ। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एज अ कैबिन क्रू जब जॉब करते हो? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अपने ऊपर, जैसे वेट Yes, मेंटेन yes. रखना है, या इस टाइम के बाद बाहर नहीं जाना है, या आई डोंट नो, कुछ अगर फ्लाइट मान लो आपका रोस्टर था और आप नहीं पहुंचे, तो हाँ जी ऐसी बिल्कुल। कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताओ। यार बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत होती हैं। अच्छा। लाइक वेट मैनेजमेंट होता है, पर ऐसा नहीं कि यू गेटिंग लाइक चेक्ड एवरी मंथ। अच्छा। I feel like more of a weight is more of your health also. हाँ। You need to be really physically fit, medically fit to operate a flight. वो ज़रूर चेक करते हैं। अगर आपका weight really like you have put on some more weight, they give you time to really take care. ऐसा कुछ नहीं होता कि you'll be kicked out of the airline and job, ऐसा कभी कुछ नहीं है। But medically fit होना बहुत ज़रूरी है। God forbid if something happens, हाँ, you right. know, then company really want their cabin crew to maintain and physically be fit. और चीज़ें होती हैं लाइक हम सोते रह जाते हैं और फ्लाइट को नहीं पहुंचते, ये मेरे साथ कई अच्छा, बार उस टाइम पे हुआ क्या है। होता है, जैसे मान लो, अच्छा अब आपका जैसे हो गया, जी रोस्टर जी था, जी पहुंचे नहीं, अब 10 जी। लोगों को होना चाहिए था कैबिन में, लेकिन है 9 लोग। अब ये 9 लोगों की या टीम कैसे फ्लाई करेगी 15 घंटे? या ये चीज़ें तो बहुत हुई हैं। लाइक कभी कभी लाइक यू नो व्हेन यू टायर्ड, मैं सोती, मुझे पता ही नहीं मेरी फ्लाइट है, मैं भूल गई, रोस्टर गलत देख लिया। So what happens is आप सो रहे हो and you हाँ। keep getting calls because you have to be there on the flight. हम्म। But it's okay. There are people on standby. अच्छा, कुछ होते cabin हैं। crew, हाँ जी, standby में डाला जाता है for such situations. So they are pulled out. देयर। And then yeah, you need to give an answer. What happened? Why you were not there? That's it. दैट्स इट। हाँ जी बिल्कुल। मैं सोती रह गई थी, सॉरी। मैं सोती रह गई। या ये दब बोला कभी कि मैं सो गई थी, सॉरी? मैं गिर गई थी, मैं मुझे चोट गिर- लग गई, मेरा you know like something. जो बहाने हम सब अपने ऑफिस में मारते हैं, Yeah, आज try to माइग्रेन save हो गया। yourself from warning letters and something that happens, but yeah, it's okay. ऐसा कोई बड़ा कुछ issue नहीं बनाया जाता. It's okay. It's You okay. learn from it and next time आप नहीं करोगे. नेक्स्ट टाइम That's आप नहीं करोगे, नहीं That's it. करोगे। Yes, yes. अच्छा, एज थ्रू आउट योर करियर, जी। लाइक आई होप जितना आपने काम किया, आपने भी प्रोग्रेस कर लिया होगा टुवर्ड्स वर्किंग इन बिजनेस क्लास, है ना? जी। तो विच वे डू यू लाइक इट मोर, इकोनॉमी और बिजनेस? See, it's good when you are not stagnant. आप एक position पे नहीं हो and you're getting promoted. You know, you Right. change your position. So मुझे promotion हमेशा से अच्छी लगती थी. So when I was in economy, good ahead. But I always want to look forward to get promoted higher positions. So once I became the lead, I was really happy. यू वर द लीड टू, लाइक पूरा हाँ क्रू जी, आप हाँ मैनेज जी। कर रहे थे? Yes, yes, I was the lead, and that आप डांटते थे really. लोगों को, इस तरह क्या कर दिया? नहीं 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 नहीं, I was not that person. I really wanted my crew to be happy, then only they can take good care of the passenger, they'll be happy. वो बहुत important होता Yeah, है, right. positive environment बनाना. So मैं जब lead थी, really जब promote हुई, I really got to learn about leadership qualities, और आप change होते हो as a person. And I made sure my crew is happy. I had this positive environment, you know, created on flight, so passengers can be happy. And हमारी basically at the end of the flight हमारी अच्छी जानी चाहिए, अच्छा, passenger चाहिए, खुश होना चाहिए. खुश होना चाहिए। That's all it matters for us. राइट राइट। Then later on you go ahead on the layover, you have your own time, and you really feel good, you know, that Right, it's right. achieved what goal you had. व्हाट विल यू हाँ हैव? जी। धीरा, ऐसा होता है कभी कि मुझे बिजनेस क्लास में ही आज सर्विंग करनी है, मैं इकोनॉमी में नहीं कर रहा, या एज अ क्रू?
यार वो तो आपकी मर्जी चलती है या फिर नहीं, रोस्टर सेट होता है कि तुम इकोनॉमी में हो, तुम बिजनेस में हो, वहीं रहो? यार जो पैसेंजर्स जो क्रू स्टार्ट कर रहे हैं, दे हैव टू वर्क इन इकोनॉमी। ओके। एंड जो प्रमोट होके आगे आ चुके हैं, वो कंपनी में आपको नाम रहता है, लिस्ट होता है, दे आर वर्किंग इन बिजनेस क्लास, तो सब सेट होता है। ऐसा कभी किसी को कोई अच्छा एयरलाइन में कुछ लिमिट होती है कि इकोनॉमी में इतनी ही अल्कोहल सर्व करना है लोगों को, बिजनेस में इतना ही सर्व करना है, या फिर इट्स आपको आप लोगों को बोलते हो कि दो ही दूंगे, इससे ज्यादा नहीं दूंगे, लेकिन आपके पास अनलिमिटेड होता है पीछे देने के लिए? नहीं ऐसा नहीं है, लिमिट होती है। ऐसे कोई नंबर्स में मैं नहीं बताऊंगी, बट व्हेन वी नो अ पर्सन इज गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड, वी ट्राई टू डिले एंड मेक श्योर करते हैं ही डजंट ड्रिंक मोर। बाय सीइंग हिज पर्सनालिटी वी गेट टू नो, पर हर पर्सन डिफरेंट भी होता है। इफ वन पर्सन कैन टेक 2 drinks, he can get drunk, and one person can have like 6 drinks and he's still तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो और मिल जाएगी पीने के लिए। So we need to monitor the passenger basically, and पता चल जाता है, and we have the own procedure, कैसे आप थोड़ा डिले करो maybe, and then you have to, like, if he's really intoxicated we have to say no. Right. So that's how we follow our procedures, and you're well trained for it beforehand. समझ गया जी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आज के लिए, राइट? बिजनेस क्लास में हर बार मुझे टिकट कैसे मिल सकती है? मैं खरीदूं इकोनॉमी लेकिन अपग्रेड हो जाए किस तरीके से? यार आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन, सब पूछते हैं कैसे हमें अपग्रेड मिले, फ्री टिकट्स मिले। टू बी ऑनेस्ट, हम कैबिन क्रू हैं एंड अंदर काम करते हैं, सो मोस्टली इट्स ऑन द ग्राउंड हैंडलिंग। बट एक ट्रिक मैं आपको दूंगी, जब भी आप एयरलाइन में काम कर रहे हैं, प्लीज जॉइन द मेंबरशिप। ये तो सेल्स पिच हो गई यार, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो आपके जब भी पॉइंट्स रिडीम करेंगे एंड यू माइट गेट अ फ्री टिकट। और एक ही एयरलाइन पे टिकट ऑफर है ना, एक ही एयरलाइन पे ट्रैवल करो फिर जिसका मेंबरशिप प्लान लिया है। यू कैन गेट मोर मेंबरशिप, नॉट एन इशू। मेंबरशिप के कोई पैसे नहीं लगते, यू नॉट पेइंग। अच्छा, ओके। So it's better to get it and get all the benefits which airline is offering, and बहुत सारे benefits होते हैं जो airline offer करती है अपने। आपके पास राइट्स होते हैं अंदर, अगर मैं इकोनॉमी लेके बैठूं और फिर आपसे बोलूं मुझे बिजनेस क्लास भेज दो प्लीज? बिल्कुल नहीं पीयूष। वहां भी कन्विंस नहीं कर सकता मैं किसी को कि बिजनेस भेज दो। नहीं, we follow our standard procedures and we don't do such things. Okay. But yes, there are benefits as I told you, and you should definitely get one. ग्रेट, थैंक यू सो मच जीरा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज माय प्लेजर। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर जो लोग देख रहे थे उनको पता लग गया होगा कि करियर कैसे बनाना है कैबिन क्रू की तरह, राइट? एंड गाइज, आई होप आप लोग पूरा पॉडकास्ट एंजॉय किया हो, आप लोगों को समझ आया हो जिसके लिए हमने पॉडकास्ट बनाया था। और ऐसे ही और पॉडकास्ट देखते रहिए। डू सब्सक्राइब फॉर करियर्स Q&A। और हाँ, जिस भी करियर के बारे में जानना है, डू लेट मी नो, कमेंट्स में बताना, उस करियर के बंदे को लेके आऊँगा और इसी तरह डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे करियर की पूरी इनसाइट्स के बारे में। Thank you so much for joining us today, guys. This is Piyush Jolly signing off. Have a great day.